Hello everyone, welcome to back ND classes. Today we are going to discuss about the physical feature of India. Okay student, so in which our complete India is divided into 6 physical features. The first one is the northern mountain. In northern mountain we discuss about the Himalayan range and the Jammu Kashmir mountains and Nepal Himalayas, Kumaon Himalayas and some eastern part of the hills and ranges. Okay, and in northern plain we will discuss this plain. Okay, our northern plain is basically made up of by the Indus river, that is called as Sindhu river, and Ganga river and Brahmaputra river. Okay, then we discuss about the peninsular plateau. Okay, in peninsular plateau we discuss this part of our India, and in India desert we discuss about the Thar desert, which is located in Rajasthan, and in the last, second last, coastal plain, we discuss the western coastal plain and eastern coastal plain. The Ghats also we discuss in plains. In islands we discuss only Lakshadweep and Andaman Nicobar. So let's start from the northern mountain. So students, when we discuss about the northern mountain, we can categorize northern mountain into two categories: Himalayan mountain and northeast mountain. In Himalayan mountain, we divide the Himalaya into the 4 categories: Trans Himalayas, Greater Himalayas, Middle Himalayas, and last one is the Shivalik. This categories dividation is from to the north to south. Okay, the top one is the Trans Himalaya and the last one is the Shivalik Himalaya. Okay, and about the northeastern region, the northeast mountain categories are Darjeeling, that is also called the Sikkim Himalaya, and Arunachal Himalaya and the Eastern Himalaya. In Eastern Himalaya, we will discuss about the Patkai Boom of the Nagaland and the Manipur, Mizo Hills, Lushai Hills. These are the several hills which we will discuss in the Eastern Hills. So student, if we talk about the Himalaya, the first one is the Kashmir Himalaya. So Kashmir Himalaya is located between the Indus River and the Satluj River. Okay, if we see about the Indian map, then we can see here the first one is the Karakoram range. Okay, this sequence is also asked by the UPSC various time. So look carefully. The first one is this one is the Karakoram range. Okay, after that Karakoram range there is a Ladakh, and after Ladakh there is a Jaskar range. Okay, and last one is the Pir Panjal range. Between the Pir Panjal and Jaskar, okay, there is a place named Srinagar and one lake also, Buller Lake. Okay, in Jammu Kashmir there are 2 lakes, Buller Lake and Dal Lake. Both lakes are freshwater lakes. Okay, you have to remember this point very carefully. और जो स्टूडेंट्स जो आपके ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, उसका जो एक्सपेंशन है वो कश्मीर में नांगा पर्वत से लेकर तिब्बत में नामचा बरवा तक है. ये आपको याद रखना है कि जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंशन आपके नांगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है. ठीक है, और जो आपके इसकी जो आपकी विड्थ और लेंथ है वो आपके ईस्टर्न, यानी कि इधर आपके जो विड्थ है इसकी कम हो जाती है और यहाँ पर विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है. यहाँ पर जो विड्थ होती है वो होती है 400 किलोमीटर. ठीक है, और यहाँ पर जो विड्थ होती है वो होती है 160 किलोमीटर. और जो इसकी कंप्लीट लेंथ है वो है आपके 2400 किलोमीटर. ठीक है, तो ये आपके जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपके स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. और जो आपके डल लेक है वो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में लोकेटेड है. पीर पंजाल रेंज के बीच में कौन सी लेक है, डल लेक. ठीक है, अभी आपको बताया मैंने कि डल लेक और वुलर लेक दोनों ही लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक हैं जम्मू एंड कश्मीर की. इसके बाद आपके बहुत सारे पासेस भी आपके जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहाँ पर मिलते हैं आपको. ठीक है, मैं आपको पासेस का एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके पासेस और कौन कहाँ से वो लोकेटेड है ये सारी चीज़ें उसमें आपको डिफाइन की जाएगी. तो आपका जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, वहाँ पर आपका जो पास है वो है आपका जोजिला पास. ठीक है, आपके जो पीर पंजाल है वहाँ पर आपका कौन सा है, बनियाल पास.
ठीक है। इसके बाद आपके जो जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज में आपका जो पास पड़ेगा उसका नाम है फोटुल्ला पास, फोटुल्ला पास। और लास्ट में जो लद्दाख में है वो आपके खारदुल्ला पास। ठीक है, ये पासेस क्या होते हैं, ठीक है, कौन से रीजन को कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी। ठीक है, पासेस बेसिकली होते क्या हैं, जो आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, उसमें आपके जो रास्ते हैं, ठीक है, जो पाथवेज हैं उनको बोलते हैं आपके पासेस। अब जो ग्रेटर हिमालय आपके, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इसमें जो माउंटेन्स की पिक्स आपको नजर आती है, जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट लगभग कितनी नजर आएगी आपको, 6000 मीटर। ठीक है, और जो इसका स्लोप है, ठीक है, इसका सदर्न स्लोप है, सदर्न स्लोप इज मोर स्टीप। ठीक है, जो सदर्न स्लोप है इसका वो क्या है, ज्यादा स्टीप है, ज्यादा खड़ा हुआ है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप, राइट। इसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीक्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो कंचनजंगा है, ठीक है, ये आपके हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय है इंडिया के अंदर। ठीक है, वैसे आपके जो हाईएस्ट पीक है आपके हिमालय की वो है माउंट एवरेस्ट, बट वो माउंट एवरेस्ट पड़ती है आपके नेपाल में, जिसकी हाइट है आपके 8848 मीटर। ठीक है, लेकिन जो कंचनजंगा है इंडिया में इसकी जो हाइट है वो है 8598 मीटर, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय है इंडिया के अंदर, और ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और जो आपके गॉडविन ऑस्ट्रीन है, जिसको आपके K2 के नाम से ही बोला जाता है, ये आपके कराकोरम रेंज पर लोकेटेड है, और ये आपके इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसकी हाइट है वो है 8611 मीटर। तो ये दोनों ही आपके कंफ्यूजन के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। कश्मीर हिमालय के बाद आपके पड़ता है मिडिल हिमालय, जिसको आपके लेसर हिमालय बोला जाता है, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको, उत्तराखंड हिमालय भी बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे नेम हैं। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों को देखा कि जो कश्मीर हिमालय था आपके, वो बेसिकली आपके लोकेटेड था इंडस रिवर के बीच में और आपके सतलज रिवर के बीच में। ऐसे जो मिडिल हिमालय स्टूडेंट, ये पड़ता है आपके सतलज रिवर के बीच में और आपके काली रिवर के बीच में आपका मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल हिमालय पड़ता है। ठीक है, अब जो लेसर हिमालय है इसको आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं आपके पीर पंजाल, हिमाचल में इसको बोला जाता है धौलाधर, उत्तराखंड में इसको बोला जाता है नागटिब्बा, और नेपाल में इसको बोला जाता है आपके महाभारत रेंज। इसके बाद जो स्टूडेंट आपके जो मिडिल हिमालय है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके हिल स्टेशंस भी हैं, आपके डून्स वैली भी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हिल स्टेशन के, जहाँ पर दरअसल हिल स्टेशन कैसे बनाए गए थे, आपके जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली आपके कोल्ड रीजन से आया करते थे, तो उनको कोल्ड रीजन, जैसे वहाँ पे ब्रिटिश में कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो ऐसा ही क्लाइमेट वर्क करने के लिए उनको इंडिया में चाहिए था, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेशंस बनाए जहाँ पर वो इजीली अपने एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क कर सकते थे। तो उन्होंने धर्मशाला, मसूरी, ठीक है, मसूरी में आज आपके लबासना IAS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, अल्मोड़ा, रानीखेत, कसूनी, लेंसडाउन, ठीक है, तो दिया जाता है हिल स्टेशंस। एंड इन द दून्स वैली, यहाँ पर आपके दून्स वैली भी मिलती है देखने को, जिसमें आपका देहरादून हो गया, हरीका दून हो गया, आपके कोटा दून हो गया, आपके नालगढ़ दून हो गया। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये आपके UPSC ने पूछा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि ये उत्तराखंड में। ठीक है, एक और यहाँ पर मैं बता देता हूँ साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ पड़ती है, केरला में पड़ती है। ठीक है, साइलेंट वैली का कोई भी लेना देना नहीं है आपके मिडिल हिमालय से। ठीक है, बस ये वैली वर्ड आ गया था, इस वजह से मैंने आपको डिटेल में मतलब आपको डिस्कस किया है कि साइलेंट वैली है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे, केरला में है। इसके बाद स्टूडेंट आपके जो मिडिल हिमालय यहाँ पे हिल स्टेशन आपके डून्स वैली तो मिलती हैं, साथ में आपके यहाँ पे ग्रास लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रास लैंड्स हैं उसमें आपके इनका नेम है वो है मृग। ठीक है, इसका मुझे इंग्लिश वर्जन मिला नहीं, और इसको उत्तराखंड में आपके बोलते हैं बुग्याल या फिर प्यार। ठीक है, और जो आपका मिडिल हिमालय है, ठीक है, इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है, ठीक है, वो क्या थोड़ा प्लेन है, और जिसका सदर्न स्लोप है वो क्या थोड़ा स्टीप है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्दर्न स्लोप आपके प्लेन होने की वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है, ठीक है, वहाँ पर आपके फॉरेस्ट ट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू सदर्न स्लोप में, जो कि क्या है स्टीप है,
इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट आपको पड़ता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को आपका आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और जो शिवालिक हिमालय है इसका जो एक्सपेंशन है ये पाकिस्तान के पोर्टवार बेसिन से लेकर आपके अरुणाचल के दिहांग गॉर्ज तक है। दिहांग आपके एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब दिहांग, कामेंग, दिबांग, ये सारी सुबनसिरी, ये सारी रिवर आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से इनको डिस्कस किया जाएगा। और जो शिवालिक है आपकी, ठीक है, इसकी आपके जो वेस्टर्न में जो विड्थ है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में इसकी विड्थ है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका है वो है दार्जिलिंग हिमालय। दार्जिलिंग हिमालय को आपके सिक्किम हिमालय भी बोला जाता है। बेसिकली दार्जिलिंग की वहाँ पे आपके जो चाय है, टी है, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो दार्जिलिंग हिमालय बेसिकली आपके लोकेटेड है नेपाल हिमालय के और भूटान हिमालय के बीच में यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो इंडिया की भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है वो है आगे माउंट एवरेस्ट की जो इंडिया में सबसे हाइट वाली जो पीक है वो है कंचनजंगा, जो आपके कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। इसके बाद जो आपके सिक्किम हिमालय है, यहाँ पर आपकी एक ट्राइब रहती है, इसका नाम है लेपचा ट्राइब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में आ चुका है कि स्टेटमेंट के रूप में आया था कि लेपचा ट्राइब आपके बेसिकली कौन सी हिमालय में लोकेटेड है। तो आपको बताना है कि सिक्किम हिमालय में या फिर आपके दार्जिलिंग हिमालय में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लैंडस्केप मिलता है, इसका नाम है द्वार्स। तो बेसिकली द्वार्स में क्या करते हैं हम लोग, जो टी के जो खेत होते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं टी के, उनको बोलते हैं हम लोग बागान। तो यहाँ पर आपके बेसिकली टी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, असम वगैरह में टी प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट आपका आता है अरुणाचल हिमालय। तो जो अरुणाचल हिमालय, इसका एक्सपेंशन आपके भूटान हिमालय से लेकर आपके दीफू पास तक है। ठीक है, तो और जो दीफू पास है वो आपके यहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से आपके एक रिवर एंटर करती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो स्टूडेंट जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जिसमें हमें आपके सुबनसिरी है, दिहांग है, दिबांग है। तो ये सारी आपके जो रिवर्स है क्या करती है, आपके माउंटेन्स में होके फ्लो करती हैं। ठीक है, तो जब ये माउंटेन्स में होके फ्लो करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो ये रिवर्स हैं, सुबनसिरी, कामेंग, दिबांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिससे हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वो भी क्या होगी, आपकी इजीली फुलफिल यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट आपको मैंने जैसे बताया कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बेसिकली यहाँ पे आपकी ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स में जो आपके वेस्ट से लेके, ठीक है, जो ईस्ट तक, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में रहती हैं। ठीक है, और बेसिकली जो ट्राइब्स के नेम है, ठीक है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ, वहाँ की जो हिल्स है, उनका नाम भी इनके ऊपर रखा गया है। तो वेस्ट में सबसे पहले आपको जो ट्राइब्स मिलेगी वो है आपके मोनप्पा ट्राइब्स। ठीक है, इसके बाद डाफला ट्राइब्स मिलेगी, फिर आपके अबोर ट्राइब्स मिलेगी, फिर आपके मिशमी ट्राइब्स मिलेगी, फिर निशी, देन नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब्स बेसिकली आपके नागालैंड की ट्राइब्स है। ठीक है, और ये भी आपके जो मैंने मोनप्पा, डाफला, अबोर, मिशमी, निशी, नागा बताई, ये सारी क्या है, अपने आप में हिल्स के नेम भी है। ठीक है, और ये अपने आप में ट्राइब्स के नेम भी है। तो इनका जो एक्सपेंशन है या फिर आपके डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट में, इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट आपके जो लास्ट पड़ती है, आपके जो नॉर्दर्न माउंटेन का जो लास्ट पार्ट है वो आपके ईस्टर्न हिल माउंटेन। ठीक है, तो ईस्टर्न हिल माउंटेन में बेसिकली जो आपको मणिपुर है, तो मणिपुर में आपके एक लेक है, लोकटक लेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पिछले साल पूछा गया था यूपीएससी में। इसके बाद आपके जो बराक रिवर है, बराक रिवर आपके मणिपुर, मिजोरम एंड असम, इन 3 रीजन्स में होकर क्या करती है, फ्लो करती है। इसके बाद नागालैंड में आपके 2 हिल्स हैं, पटकाईबू एंड नागा हिल्स। ठीक है, और जो स्टूडेंट आपके जो ईस्टर्न हिल माउंटेन्स है, ठीक है, इसको आपके वाटर डिवाइडिंग रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको आपके क्लाइमेट डिवाइडिंग रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, साथ में, ठीक है, यह आपके इंडियन मानसून को क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो इस तरीके से आपके पास बनता है, तो इस बैंड को बोलते हैं आपके सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्सियल बैंड। तो आपकी जो मानसून विंड्स हैं, ठीक है, वो आपके ये बैंड इसकी वजह से होने की वजह से वो करती है, इधर मूव कर, ऐसे अंदर की तरफ मूव कर जाती है। अगर ये बैंड नहीं होता तो करती वो सीधी चली जाती है, जिसकी वजह से आपके इंडिया में मानसून की एंट्री यहाँ से आपकी क्या नहीं हो पाती। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम लोग हिमालय का अगर हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन करें तो आपकी
ये चीज़ निकल कर आती है, ये क्रक्स निकल कर आता है कि जो आपके पंजाब हिमालय है, जिसको आपके कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, और ये पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय किसके बीच में पड़ता है, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है। इसके बाद आपका आता है कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय में आपके जो ग्लेशियर्स हैं हमको वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो कुमाऊं हिमालय वो मिलेगा हमको सतलज रिवर से लेके आपके काली रिवर के बीच में, फिर काली रिवर से लेके और तीस्ता रिवर के बीच में आपका मिलेगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सबसे ज़्यादा हाइट आपको देखने को मिलेगी। इवन आपके जो कंचनजंगा है, जो आपके हिमालय की हाईएस्ट पीक है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके है असम हिमालय। असम हिमालय की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ट्राइब्स हैं वो सबसे ज़्यादा रहती हैं, और जो ट्राइब्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट के प्रति क्या होती है, बहुत ही अवेयर होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो पूरा लाइफ स्टाइल होता है वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंडेंट होता है, आपके नेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए आपके बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगी, असम हिमालय में देखने को मिलेगी। एंड असम हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन द तीस्ता रिवर एंड द दिहांग रिवर। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट था नॉर्दर्न माउंटेन, उसको कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन को। सो आई होप कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।